Hello everyone. Today I am discuss about class 12 business studies topic management as an art. So first of all, what is the management as an art? Art can be defined as systematic body of knowledge with creativity and practice to get perfection. And the main feature of art are theoretical knowledge. In every art, there is the systematic and organized study material available to theoretical knowledge of the art. Second is personalized application. In the field of art, only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, all musicians learn same rock, but they apply these rock according to their personal skill and creativity, which make them different. This is personalized application. Next is based on practice and creativity. The artist require regular practice of art to become more fine and perfect. Without practice, artists lost the perfection. This is based on practice and creativity. Next is management as a science. What is the management as a science? Management is both science as well as art. Like science is a systematic and well organized body of knowledge, and like art is the required personal skill, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way. The first feature of the science, systematic body knowledge. Systematic body knowledge. In the science organized, the systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management also, there is available of systematic and organized study material. Next is a principle based on experiment. Science प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू द एक्सपेरिमेंट. आपको पता है कि साइंस में पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है. उसी तरीके से मैनेजमेंट को पहले उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसको पहला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब उसको बिजनेस में उसको अप्लाई किया जाता है, उसके प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है. जैसे हमने क्लास 11 में इसको डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल थे ना, कि कई तरीके के प्रिंसिपल थे. गुड फेथ के प्रिंसिपल थे और सबरोगेशन के प्रिंसिपल थे. तो उसको पहले प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट उसको अप्लाई किया जाता है. फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एक्सेप्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज नॉट यूनिवर्सल. सारे प्रिंसिपल ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हर जगह पे वो प्रिंसिपल अप्लाई हों, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट: टॉप level of management, middle level of management and supervisory level, operation or level and low level of management. There are 3 types of level of management. So first is top level. They consist of the senior most executive of organization. Top level management consists of chairman, board of director, managing director, general manager, president, vice president, chief executive officer, CEO, chief financial officer, CFO, and chief operating officer. It includes group of the top level management. The manager working this level have maximum authority. And next is what is the function of top level management.
The first function is farming of plan and policy. The top level manager also the plan and policy to achieve the best objective. जो टॉप लेवल के चेयरमैन या टॉप लेवल के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो क्या सबसे पहला वर्क वो करते हैं कि फार्मिंग द पॉलिसी एंड प्लान, वो सबसे पहले प्लान और अपनी पॉलिसी को बनाते हैं। ये वर्क जो है वो टॉप लेवल के लोग करते हैं, स्टार्टिंग के जो सबसे हाई लेवल के लोग होते हैं स्टार्ट। सेकेंड इज मिडिल लेवल। This level management consists departmental heads such as purchase department head, sales department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent. People of this group are responsible for the executive the plan and policy made by top level. ये उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इन्होंने प्लान एंड पॉलिसी बनाई है। फॉर जैसे एग्जांपल फॉर सेल डिपार्टमेंट में, अगर सेल डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उनके ज़िम्मेदार होते हैं। दे एक्ट एज लिंकिंग बिटवीन टॉप लेवल एंड लो लेवल। ये इनका लिंक होता है जो टॉप लेवल से और लो लेवल वालों से जुड़ा होता है, क्योंकि ये जो कंसल्ट करते हैं वो टॉप लेवल से करते हैं, टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन लेके लो लेवल तक भी ये देते हैं। तो ये इनका लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड low level. And some function of middle level of management. Middle level of management and link between top and low level. They only explain the main plan and policy formed by top level management to the low level. जो मिडिल लेवल के जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं जो मेन प्लान एंड पॉलिसी जिन्होंने टॉप लेवल के जो डायरेक्टर ने बनाई है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं लो लेवल तक। और जनरली मिडिल लेवल मैनेजर आर टू हेड ऑफ सब डिपार्टमेंट। सारे मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड होते हैं जो मिडिल लेवल के लोग आते हैं। दे ऑर्गेनाइज ऑल रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। वो सारे रिसोर्स और एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट की। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो वो सारे रिसोर्सेज को एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करेगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो सारे डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो अलग तरीके से अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एंड फाइंडिंग आउट एंड सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में जितनी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉय ऑफ देयर डिपार्टमेंट, वो उनको सेलेक्ट करता है। और भी जैसे मोटिवेट द पर्सन टू परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी, वो मोटिवेट करते हैं जो लो लेवल के लोग काम करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं और वेरियस ऑफ़र देते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर ऑफ़र वेरियस इंसेंटिव टू एम्प्लॉई सो डैट गेट मोटिवेट एंड परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी। उनको ये इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर आप वर्क करोगे तो आपको अलग से इंसेंटिव मिलेगा, तो वो मोटिवेट होते हैं और अपना बेस्ट एबिलिटी वहाँ पे दिखाते हैं। और नेक्स्ट है जिसको बोलेंगे लो लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। लो लेवल कंसिस्ट सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सुपरवाइज़र, क्लर्क। मैनेजर इज ऑल्सो ग्रुप carry the work perform activities according the plan of top and middle low level. The authority is limited. The quality of quantity of output depend upon the efficiency of level of manager. They pass on the instruction to worker and report the middle level. मतलब जो भी ये लो लेवल के होते हैं सारी रिपोर्ट जो है, जो लो लेवल के लोग होते हैं जो इसके अंडर में वर्क करते हैं वो सारी रिपोर्ट जो है वो मिडिल लेवल तक देते हैं। एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एमंग द वर्कर। उनके अंडर में जो वर्कर काम करते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोरमैन है, फोरमैन के अंडर सुपरवाइज़र, इनके अंडर में कुछ पर्सन होते हैं जो इनके अंडर में वर्क करते हैं, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इसके लिए मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मतलब उसके लिए वो डिसिप्लिन को बनाए रखें। कुछ फंक्शन है, सम फंक्शन ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट: मेंटेनिंग गुड एंड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट।
The supervisory manager provide good working condition and create work environment, improve the relation between superior and subordinate. uh, तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन, ये वर्किंग कंडीशन अच्छा देते हैं जो भी उनके अंडर में वर्क के अंदर जो काम करते हैं, और इम्प्रूव द रिलेशन को अच्छा करते हैं। फिर नेक्स्ट है लुकिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, मतलब उनके सेफ वर्क अगर करा रहे हो तो सेफ्टी के साथ कराना है, वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, उनके लिए हेल्थ के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और है कुछ इसके फंक्शन, मेंटेन द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ इंश्योर द फ्लो आउटपुट बेस्ट क्वालिटी, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर मेक श्योर द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन बाय द वर्कर एंड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब मिनिमाइज़ करना जो हमारे जो वेस्टेज मटेरियल कम से कम वो ख़राब हो, बर्बाद हो, एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजरी लेवल। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do. This is the planning. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Every manager starts with deciding in advance the objective of an enterprise and how to this objective. तो प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो सारे फंक्शनों का बेस है, क्योंकि सबसे पहला वर्क हमारा जो होता है वो प्लानिंग का होता है। प्लानिंग के बाद ही सब कुछ करते हैं। जैसे अगर हमको एक घर भी अगर एक बनवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। स्कूल में फंक्शन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको प्लानिंग करती है, तब उसके बाद नेक्स्ट आगे का जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। And second is organizing. What is the organizing? After setting up of plan को सेटअप करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर सो दी ऑर्गेनाइज दी एक्टिविटी एंड एस्टेब्लिश एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टू द प्लान। सेटिंग अप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट ऑफ द सब यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट आर नीडेड। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितने डिपार्टमेंट बनेंगे, क्या वर्क होगा, किस तरीके से होगा। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रिफर टू सेलेक्टिंग द अपॉइंटिंग द एम्प्लॉई। स्टाफिंग में जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो सिलेक्शन करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं एम्प्लॉय का, असाइन द ड्यूटीज़, और सबको ड्यूटी दी जाती है, मेंटेनिंग द रिलेशन एंड टेकिंग केयर एम्प्लॉई। तो ये जैसे स्टाफिंग में होता है।